اور ملی بہنوں، کل ہم لوگوں نے سورہ قاریہ پڑھا۔ سورہ قاریہ کل ہم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا، اور اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراکا، اور کیا معلوم آپ کو، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے منتشر پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کے مانند ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت، بہرحال وہ شخص جس کے میزان بھاری ہو گئے، جس کا وزن بھاری ہو گیا، اور وہ فی عیشۃ راضیہ، تو وہ آرام پسند زندگی میں ہوگا، واما من خفت، بہرحال وہ شخص جس کے ترازو یا جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، قوم حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور کیا معلوم تمہیں کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی گرم آگ ہے، تو یہاں بتایا گیا سورہ قاریہ میں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا کے اندر کی چیزوں کی یہ پوزیشن ہوگی، یہ حال، اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اسے سزا اور جزا ملے گی۔ اگر انسان کے اعمال اچھے رہے، نیک رہے، اس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری رہا، تو کامیاب ہوگا، فائز المرام ہوگا، جنت میں داخل ہوگا جہاں آرام کی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے، غلطیاں زیادہ ہو گئی، جرائم کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی، اور وہ جہنم میں جائے گا، ایسا انسان جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، قیامت پر ایمان لائیں، اور نیکی کے کام کریں، تاکہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن ہم سرخرو کامیاب ہوں، اور ایسے کام نہ کریں جس سے ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آگے ہم لوگوں کو جو ہے سورہ عادیات پڑھنی ہے۔ سورہ عادیات یہ مکی ہے، اور اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ یہ مکی ہے اور اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ اس میں بھی انہی تمام چیزوں کا، قیامت وغیرہ کا بھی بیان ہے۔ اس میں بھی قیامت وغیرہ ہی کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ کس طرح لوگ کانپتے کانپتے پریشان حال میں کس طرح لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، اور کس طرح پریشانی کے شکار ہوں گے، اور کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے۔ اس کے اندر اس چیز کا کیا ہے؟
बयान है। सूरा में इसी चीज का क्या है, बयान है। आदियात, लफ्ज आदियात यहाँ वाव जो है कसम के लिए, वाव कसमिया है। वाव, जैसे मैंने बताया था कि वाव कई माना के लिए आता है। वाव, वाव किन हरूफ में से है, कौन बताएगा? वाव जो है किन हरूफ में से है? हुरूफ जार। हरूफ जार्रा में से है। माशाल्लाह, जजाकल्लाह। और हरूफ जार्रा ये क्या करते हैं? आगे वाले हम जेर देते हैं अपने बात में। अपने इस्म को जेर देते हैं। अपने इस्म को जेर देते हैं, यानी अपने इस्म को मजरूर कर देते हैं। और वाव जो है एक तो अत्फ के माने में आता है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाने के लिए आता है। जैसे जा जैदुन व बकरुन, जा जैदुन व बकरुन, जैद और बकर आए, तो ये वावी अत्फ है। वावे अत्फ है कि जैद के ऊपर बकर का अत्फ किया गया, कि जैद और बकर दोनों आए। और एक होता है वाव माँ के माने में आता है, साथ के माने में। जैसे जाल मर्द वल जुब्बात, जार रजलु व तिफल, जार रजलु व तिफल, आदमी आया अपने बेटे के साथ। आदमी आया अपने बेटे के साथ, तो ये वाव जो है माँ के माना है। ऐसे ही वाव कसम के लिए आता है। वाव कसम के लिए आता है। वल आदियात, वल अस्र, कसम है अस्र की। वल अस्र, कसम है अस्र की। तो ये वल लैली, कसम है रात की। वज़ुहा, कसम है ताश के वक्त की। वशमसी, कसम है सूरज की। तो ये वाव कसमिया है, यानी ऐसा वाव है जो कसम का माना देता है। और आदियात, ये आदियतुन की जमा है। आदियात या आदियतुन की जमा है। ये अदु से मना हुआ है, जिसके माने हैं तेज रफ्तार घोड़े। जिसका माना है तेज रफ्तार घोड़े। आदियात या आदियतुन की जमा है, माना है तेज रफ्तार घोड़े। और जबहा, जबहा के माने होते हैं हाँपना या हिन हिनाना। घोड़ा जब घोड़ा जब बोलता है तो हिन हिनाता है, घोड़े का हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है। और हाथी चिंघाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, बकरी मिमियाती है। और तो यहाँ बताया घोड़े का हिन हिनाना, घोड़े का हिन हिनाना या घोड़े का हाँपना, यानी तेज रफ्तार आदमी जब घोड़ा दौड़ता है तो उससे आवाज निकलती है। जैसे इंसान जब दौड़ता है तो उससे हाँपने लगता है, आवाज निकलती है। तो ऐसे ही घोड़ा जब तेज रफ्तार होता है तो उससे एक किस्म की आवाज निकलती है, उसी को हाँपना बोलते हैं। या घोड़ा जब दौड़ता है तेजी के साथ तो हिन हिनाता है, आवाज निकालता है। तो जबहा के माने हैं हाँपना या हिन हिनाना, हाँपना या हिन हिनाना। और आदियात के माने तेज रफ्तार घोड़े, या आदियतुन की जमा है। ऐसे मूरियात, बाद में उसका लफ्ज आता है मूरियात। मूरियात, ये मूरियतुन की जमा, मूरियतुन की जमा है। माना है आग निकालने वाले। मूरियतुन, मूरियात, ये मूरियतुन की जमा है। माना है आग निकालने वाले, क्या चिंगारी निकालने वाले।
जैसे चकमाक से आग निकाला जाता है, चकमाक से रगड़ करके क्या किया जाता है, आग निकाला जाता है। या दो लोहे या दो पत्थर आपस में जब टकराते हैं तो उनसे चिंगारी निकलती है, उनसे क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो उसी माना है आग निकालने वाले। और कदहुन के माना है टाप। जैसे घोड़े जब चलते हैं तो और जब उठाते हैं तो चुट चुट की आवाज आती है। जैसे हम चप्पल पहन के जब चलते हैं तो चप्पल को जब हम पैर उठाते हैं तो आवाज निकलती है। ऐसे ही जब घोड़े क्या है, पैर रखते हैं या उठाते हैं तो आवाज निकलती है। तो उसी को बोलते हैं घोड़ों की टाप, घोड़ों की, घोड़े की टाप। इसी तरह मुगीरात, मुगीरात मुगीरतुन की जमा है। मुगीरात मुगीरतुन की जमा है रात में हमला करने वाले, जिसको बोलते हैं शबखून मारना, धावा बोलना। रात में धावा बोलने वाले, शबखून मारने वाले। मुगीरात मुगीरतुन से जमा है, जिसके माने है शबखून मारने वाले, धावा बोलने वाले, हमला करने वाले। और सुबह मतलब सुबह के वक्त। यहाँ मुगीरात और सुबह जो आया हुआ है उसकी वजह यह है कि अरब में आम तौर पर सुबह के वक्त ही हमला किया जाता था। ये वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बस्ती पर आपको धावा बोलना होता था, हमला करना होता था, तो आप सुबह सुबह करते थे और लोगों को वसीयत करते थे कि उस वक्त तक हमला ना करो जब तक कि फजर का वक्त ना हो जाए। फजर का वक्त हो जाए और आजान की आवाज आए तो हमला ना करो। फजर का वक्त हो जाए और अजान की आवाज आए तो हमला ना करो, लेकिन फजर का वक्त हो जाए, अजान की आवाज ना आए तो हमला करो। तो अरब में आमतौर पर हमला सुबह के वक्त यानी फजर के वक्त ही किया जाता था। शबखून मारे जाते थे जो फौजी घोड़े पर सवार होते थे। लेकिन और इसकी निस्बत जो है घोड़ों की तरफ भी गई है। जाहिर सी बात है, घोड़ा तो शबखून मारता नहीं, शबखून मारने वाला इंसान होता है, हमला करने वाला इंसान होता है। लेकिन इसकी निस्बत घोड़े की तरफ की गई है, इसलिए कि हमला करने में घोड़े जो है फौजियों के बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। हमला करने के लिए भी और हमला करके भागने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। फिर कहा फासर, फासरना जो आसार, आसार जो है, असारा, असार के माने, असारा युसिर असारतन के माने होता है उड़ाना। असारा युसिर असारतन माने उड़ाना, समझो। और नकौन के माने गर्दो गुबार, नकौन माने गर्दो गुबार। जाहिर सी बात है, जैसे गाड़ियां जब गुजरती हैं तो गर्दो गुबार उड़ाती है। ऐसे घोड़े घोड़े जब तेज रफ्तार दौड़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे से धूल उड़ती है और गर्दो गुबार होता है। और वो बहुत ज्यादा जब घोड़े एक साथ दौड़ते हैं तो फिजा में पूरा धूल ही धूल हो जाता है, फिजा में पूरा धूल ही धूल हो जाता है। तो इसीलिए नकौन के माने हैं गर्दो गुबार। और वसतना, वसतना वसता से वस्त माने दरमियान, क्योंकि ये घोड़ों की बात चल रही है, घोड़े मुअन्नस है, इसी तरह वसतना के माने है दरमियान में घुस जाने वाले,
درمیان میں گھس جانے والے، درمیان میں گھس جانے والے، اور جمع کے معنی دشمن کا لشکر، دشمن کا لشکر، مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جب فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ فضا جب گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہ گھوڑے کیا کرتے ہیں؟ دشمن کے لشکر میں اور فوج میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اس کے بعد والے جو جملے آ رہے ہیں، یہ قسم جو ذکر ہے انہیں قسم کا بیان ہے، انہیں قسم کا بیان ہے، یعنی قسم کا جواب۔ تو ہم ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، یہاں بتائے قسم ہے، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے۔ سر پر دوڑنا میں تیز رفتار، بہت تیز تیزی کے ساتھ دوڑنا، سر پر دوڑنا تیز رفتاری، تو کیا ہے؟ والعادیاتی ضبحا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے، سرپٹ یعنی تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی ہنہناتے ہوئے، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی ہنہناتے ہوئے، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ہنہناتے ہوئے، آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ تو کیا قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، ہاں معنی کے پھر کے معنی میں، سما کے معنی میں، ہاں کیا ہے؟ سما کے معنی میں، پہلے پر پھر قسم ہے، پھر قسم ہے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی، سم مار کر، سم مطلب ٹاپ مار کر، پیر زمین پر پیر مار کر، سم مارنا یعنی زمین پر پیر مارنا، زمین پر پیر رگڑنا، سم مانے ہے، سم مارنا مطلب پیر کو زمین پر مارنا، رگڑنا، پیر کو زمین پر کیا ہے؟ رگڑنا۔ تو اسی لیے کہا، اسی کا نام بولتے ہیں سم مارنا، ٹاپ مارنا، ٹاپ مارنا، گھوڑوں کی ٹاپ، وہ پیروں کی چاپ، گھوڑوں کی ٹاپ، گھوڑوں کے لیے لفظ ٹاپ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے پیروں کے لیے کیا ہے؟ پیروں کی چاپ، یعنی پیروں کے چلنے کی آہٹ، پیروں کے چلنے کی آہٹ، اٹھنے اور رکھنے کی آہٹ، اس کو بولتے ہیں چاپ۔ اور گھوڑوں کے جو استعمال ہوتا ہے اسے ہوتا ہے ٹاپ، گھوڑوں کے پیروں کی ٹاپ، یعنی گھوڑا جب اپنا پیر رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے، جو آواز آتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹاپ۔ تو کیا قسم ہے، قسم ہے اس کی سرپت دوڑنے والے، سرپت دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے۔ پھر قسم ہے آگ نکالنے والوں کی، سم مار کر یا ٹاپ مار کر، پیر مار کر، کیا ہے؟ پیر مار کر۔ پھر کہا فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت، پھر قسم ہے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت۔ تو یہاں ہے فالمغیرات صبح، یہ سب قسمیہ جملہ ہے نا؟ تو اسی لیے کہا کیا ہے؟ قسم ہے سرپت دوڑنے والے، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہنہناتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے،
कह रहे फिर कसम है, फिर कसम है, कैसे घोड़ों की? फिर कसम है किसकी? आग निकालने वालों की, टाप मारकर या सुम्मा। फिर कसम है उन घोड़ों की, इसीलिए यहाँ घोड़ा भी यहाँ भी लगे। फिर कसम है उन घोड़ों, आग निकालने वाले घोड़ों की, सुम मारकर या टाप मारकर या पैर मारकर भी कह सकते हैं। फिर कसम है आग निकालने वाले घोड़ों की, सुम मारकर या टाप मारकर या पैर मारकर। फिर कसम है हमला करने वाले घोड़ों की, सुबह के वक्त। फिर कसम है किसकी? हमला करने वाले घोड़ों की, सुबह के वक्त। फिर कसम है हमला करने वाले घोड़ों की, सुबह के वक्त। फासरन बिही नक़ा, तो जिस वक्त जो है हमला करने ते हैं सुबह के वक्त, तो क्या फिर उस वक्त क्या करते हैं? फिर वो उड़ाते हैं उस वक्त गुबार। फासर, फिर वो उड़ाते हैं उस वक्त गुबार। या कहे फिर कसम है उन घोड़ों की जो उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाने वाले हैं, गर्दो गुबार उड़ाने वाले हैं। कह रहे फासर नबी नका, फासर नबी नका, फिर वो उड़ाते हैं उस वक्त गर्दो गुबार। यानी फिर कसम है उन घोड़ों की जो उड़ाते हैं उस वक्त गर्दो गुबार। फिर कहा फवासत नबी जमा, फिर कसम है उन घोड़ों की जो दरमियान में घुस जाते हैं, जो दरमियान में घुस जाते हैं, वो है उस वक्त दुश्मन की जमात में। क्या बताया? फिर कसम है उन घोड़ों की जो दरमियान में घुस जाते हैं, दरमियान में घुस जाते हैं उस वक्त दुश्मन की जमात में। फिर कसम है उन घोड़ों की जो फौजों के दरमियान घुस जाते, जो उस वक्त घुस जाते हैं फौजों के दरमियान। ये तमाम जुमले कस्मिया हैं। अब पहला जुमला वल आदियात पर, फलमूरियात कदहा, फलमुगीरात सुबह, फासर नबी नका, फासत नबी जमा, सबका उसी पर अर्थ है। सबका पहले वाला आदियात ज़बहा पे अर्थ है। इसलिए आप तर्जुमा सुनिए। कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की, या सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की। फिर कसम है टाप मार कर आग निकालने वाले घोड़ों की। फिर कसम है सुम मारकर आग निकालने वाले घोड़ों की। फिर कसम है सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की। फिर कसम है सुबह के वक्त हमला करने वालों घोड़ों की। फिर कसम है उस वक्त उन घोड़ों की जो उस वक्त गर्दो गुबार उबारते उड़ाते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। ये पांचों जुमले जो आ रहे हैं, तीन चार जुमले पहले जुमले पर अत्व हैं और सारे के सारे जुमले कस्मिया हैं। और इन कसम का जवाब आगे आ रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ये कसम का जवाब है। ये अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बकिया चीजें होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि